Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kanak, and today we're going to do yet another pick a card reading on the topic what things or what is happening for you in the span of the next 3 months. So this is the topic for today, and today we will do a candle wax reading here. Uh, Also, I will see if we get any cards, so we will also pull some cards. Uh, yeah, and yes, I think that would be all that we'll be doing in our reading today. And yes, you can pick from the three groups that would be based on images that I would post after this intro section of the video. So you can go in the description box and tap on the group selection part. Then you can choose and then watch the particular group that you selected, as I will be posting 3 different videos for the same, so you can go there and do that. And yes, I shall see you at your reading. So hello everyone, welcome back to this reading and to the channel. So yeah, this is pile 2 and let's get started with your reading. Yeah, but before doing that, I would like to mention that I do take personal readings. So if you would want a personal reading from me, you can connect to me through my email ID given in the description box below. So I shall see you there if you want that in case. And yeah, let's get started with your reading. So I have this candle with me. We will be doing firstly the candle wax reading here with this. So yeah, let's get started. So I will just get this started. Yeah, just started. Okay. So firstly, I feel pile number 2, you are someone who is very creative, who is naturally, I feel you have a lot of talents. I think आप बचपन से ऐसे पर्सन रहे जो हर चीज़ में, स्कूल में हो सकता है आप ऐसे पर्सन रहे हो कि मुझे हर चीज़ में पार्ट लेना है, या मुझे लाइक like I have to take part in different things because I feel you actually like trying different things, and I feel आपको वो genuinely I think वो आपको genuinely बहुत thrilling लगता है. आपको एक एक एडवेंचर वाली फीलिंग आती है जब आप अलग अलग चीज़ें करते हैं, एंड आई फील वो आपके अंदर नेचुरली है एंड बचपन से है ऑब्वियसली. सो ये एक पहला मैसेज आ रहा है पहले तो मुझे. उसके अलावा मुझे एक और चीज़ जो आ रही है, इट्स लाइक कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको मौका मिलेगा कि आप अपनी क्रिएटिविटी को जितना आई वुड से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप मतलब आप उतना कर पाएंगे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स. आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एंड आई फील 1-2 अपॉर्चुनिटी शायद आपके पास अभी भी है जो जिनके ऊपर आप काम करते रहेंगे इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड आफ्टर दैट. तो उसके ऊपर आपको अपना काम जारी रखना है, एंड जो और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है अपनी क्रिएटिविटी शो करने के लिए, वो आपको लेनी है. एंड आई फील आपके साथ ये होता है कि आप ना सोचने लग जाते हो कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. तो वो आपको सोचने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आपको बनाया ही ऐसा गया है यूनिवर्स के द्वारा कि आप कोई बॉक्स में फिट ही नहीं हो. एंड आई फील सिंस दैट इज़ द केस, तो आप अपने आप को काफ़ी अलोन या एक आई वुड से एक ब्लैक शीप वाली एनर्जी में देखते हो, which is to some extent true, but you don't have to feel that you are not wanted by people, or that you are not likable enough by people. Yeah,
बिकॉज दैट इज़ रियली नॉट द केस. यू आर समवन जो अलग है, बट यू आर नॉट समवन जो लाइक मतलब you are not someone who is not lovable. You are lovable, but there is a difference between being loved and like आप ये okay. Okay, so again, so there is a difference between you thinking that you being loved and you know you caring about you are pleasing others or not. मतलब एक होता है कि आप ये सोचो कि यार लाइक कि लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, पर एक होता है कि आप ये सोचते हो कि नहीं यार मुझे हर कोई प्यार करना चाहिए. सो दैट इज देर इज अ लव सॉरी देर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग लव्ड एंड प्लीजिंग समवन. सो ये एक चीज़ आई थिंक ये भी आप समझने वाले हो, क्योंकि आपकी एनर्जी है कि आप लव एक एक लविंग वाली वाइब आप देते हो लोगों को. एंड दैट इज़ वाई सम पीपल एक्चुअली लव यू लाइक जेन्युइनली. वो आपको एडमायर करते कि यार ये पर्सन ऐसा है, लाइक दिस इज़ अ गुड पर्सन. But you shouldn't expect this from everyone, because not everyone understands those things exactly the way they are, because वो एक बहुत डीप प्लेस से आते हैं आपके लिए, एंड हर कोई उस डेप्थ को एक्सेस नहीं कर सकता है. सो आई फील दैट इज समथिंग जो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है. या and one more thing that you in some way ignore about yourself is that there are a lot of people who are actually there with you, who are actually I would say who are actually supporting you and also protecting you. और ये आपकी spirit guides भी हैं. और ये सो हेलो एवरीवन, मैं रिकॉर्ड कर रही थी एंड बीच में रुक गया ये, बिकॉज आई फील मेरा स्टोरेज फुल हो गया सा हो गया था, तो मैं अभी फिर से ये करने वाली हूँ. ओह शिट, या ये जल गया है. ओके दैट इज गुड. ओके देयर वी गो. सो ओके, एंड आई फील एक और यहाँ पे यहाँ पे एक और मैसेज है जो मुझे आ रहा है. हाँ, जो एक चीज़ मैं पहले बोल रही थी मैं फिर से बोल दी थी, वो ये है कि आप कभी कभी ना भूल जाते कि आपके लिए कितने लोग खड़े हैं, अभी कितने लोग खड़े हैं. बिकॉज आई फील देर आर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग विथ यू एंड सपोर्टिंग यू. एंड उनमें से तो आपके स्पिरिट गाइड्स तो हैं ही, बट ऐसे भी लोग हैं जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली जो आपको सपोर्ट करते हैं, एंड लाइक उनका एक अनकंडीशनल सपोर्ट है आपके लिए. तो वो सपोर्ट भी आपको याद रखना है हमेशा, एंड बार बार इस एनर्जी में नहीं आना कि यार मैं अलोन कि मैं अलोन हूँ या मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, क्योंकि आप जेन्युइनली तो नहीं हो. आप सीरियसली आप नहीं हो. आपके आसपास हमेशा हमेशा मुझे आपके स्पिरिट गाइड्स दिखाई दे रहे हैं. आपके आसपास हमेशा आपके एंसेस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप एक हाई वाइब्रेशनल सोल हो, एंड आप अपने साथ कुछ ऐसे एंटिटीज़ को कहीं ना कहीं उनसे सोल कॉन्ट्रैक्ट करवा के आए हो कि आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, या आप इस 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 पॉइंट पे या हमेशा भी आप मेरे साथ रहेंगे. तो आप ये खुद कह के आए हो उनसे, आप सोल कॉन्ट्रैक्ट करवा के आए हो, तो वो नहीं तोड़ रहे वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे. एंड यस, एंड मुझे लगता है कि बहुत टाइम बाद ऐसा एक वक्त आया है, स्पेसिफिकली द नेक्स्ट 3 months, जहाँ पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करें. क्योंकि मुझे लगता है आपकी क्रिएटिविटी पे फोकस करने के लिए आपके लिए वो एक टाइम, आपके लिए वो एक स्पेस आई ही नहीं है कभी. एंड टू एज आई से दिस ऑन द टाइमर. सो यस, आपके लिए वो टाइम आया ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है. और अब वो नेक्स्ट 3 months में वो टाइम है. सो मेक श्योर दैट यू डोंट वेस्ट इट. मेक श्योर दैट यू मेक द फुल और as much as you want out of this 3 months, the next 3 months. Yes.
एंड आई फील क्रिएटिवली आप बहुत अच्छा करोगे, बहुत आगे जाओगे, नॉट जस्ट दीज 3 months बट आफ्टर दैट एज वेल। आप नहीं रुकने वाले, मुझे लगता है आपका ना एक, मुझे एक वैसी एनर्जी आ रही है, लाइक आई डोंट नो इफ इट इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स और व्हाट, बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एक एनर्जी होती कि वो ओके वो जिया थोड़ा सा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एक एनर्जी होती कि वो थोड़ा सा स्लो चलता है बट उसके में एक डायरेक्शन होता है। तो ये भी हो सकता है कि एक आपके लिए स्लो वाली एनर्जी मुझे इतनी नहीं दिख रही, क्योंकि एक क्रिएटिव एनर्जी जब आपके अंदर से बाहर आ रही है तो आई थिंक आपको स्लोनेस फील नहीं होगी, बट सम ऑफ द पीपल अराउंड यू कैन फील दैट स्लो एनर्जी कि यार आपके काम थोड़े से ऐसे हो रहे हैं या आप थोड़ा सा इतने ज़्यादा उभर के नहीं आ रहे हो, औरों को ऐसा लग सकता है बट आई फील आपको नहीं लगेगा ऐसा, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो ये भी बोल रहे कि अगर आपको लोग कहते हैं ऐसा तो बस सुन लीजिए, क्योंकि उनका वो एक ओपिनियन है एंड आई फील आप उस ओपिनियन को सुन सकते, बट लाइक कीजिए वही जो आपको करना है, लाइक एवरीवन हैज़ अ ओपिनियन राइट। तो या एंड ये मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जो आपके लिए मैटर करते। मैं ऑब्वियसली हमें उन लोगों के ओपिनियन का क्या करना है जो नहीं मैटर करते, उनको तो हम शायद सुने भी नहीं, बट एटलीस्ट जो आपके चाहने वाले लोग हैं उनके आप सुन तो सकते हैं बात, एंड देन डू व्हाटएवर यू फील लाइक। क्या एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही कि आई फील कि फायर फायर एलिमेंट अपने बॉडी में या अपने आसपास जगा के रखना, यू नो लाइक अपने आसपास हमेशा लाइट आप रखिएगा। आई आई वुड से, और ये सिर्फ नेक्स्ट 3 months के लिए नहीं है, बट यूजुअली आई फील आपके आसपास लाइट होना हमेशा बहुत ज़रूरी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आ रहा है, बट या जस्ट डू दैट। आई थिंक ये आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर एम्फोसाइज कर रहे हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे कि मेक श्योर कि आप या फायर एलिमेंट के साथ काम करें। फायर एलिमेंट से मेरा मतलब ये कि लाइक कैंडल मैजिक कोई कर सकता है, कैंडल्स लेके एफर्मेशंस बोल सकता है, और या लाइक जैसे मैं यहाँ पे चैनल कर रही हूँ ऐसे कैंडल ऐसे रख के, इफ़ आई कुड शो जैसे मैं ऐसे कर रही हूँ, सो यू कैन ऑल्सो डू दिस फॉर योर सेल्फ टू मे बी एक्चुअली लाइक चैनल मैसेजेस इफ़ यू कैन डू दिस ऑल्सो। या एक सिंपल एक दिया अगर आप रोज़ जलाएं, और रोज़ आप ही जलाएं दिया एक, तो आई थिंक दैट वुड ऑल्सो हेल्प यू टू channel your I would say that fire energy within you, and सूर्य देव को जल चढ़ाना is the best one to channel your fire energy. So ये चीज़ें आप कर सकते हैं, and I feel बाकी तो you're good to go in the next 3 months. I don't see much of disturbances for you, but disturbances से मेरा मतलब ये नहीं कि वो जो chaos, मतलब वो जो एक थोड़ा बहुत I would say एक शोर जो होता रहता है हमारे आसपास, शोर से मेरा मतलब है कि कि लाइफ विल बी लाइफ इन द नेक्स्ट 3 months. आई एम नॉट सेइंग कि कि सब स्मूथ चलेगा, बिकॉज वो लाइफ ही नहीं होती वो सिर्फ मूवीज में होती है, तो वैसा कुछ नहीं रहेगा। बट आई डोंट सी कि ऐसा कुछ सिग्निफिकेंटली ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके आसपास आएगी। मुझे छोटी मोटी दिखाई दे रही है जो जिनसे आप बहुत इजीली बाहर आ जाएंगे, तो वो सिचुएशंस होगी आपके पास। अदरवाइज आई डोंट सी एनीथिंग एंड anything stressful. Yeah, I think that is all for you from this pile number 2, group number 2. So we will keep this now. Thank you, spirit. Thank you. Yeah, so we're done with this. Going to keep this here. Oh yeah, and now I will take cards from this moon oracle for you for any additional messages जो अभी तक हमने बोले हैं। इसके अलावा भी क्या कुछ और आ रहा है आपके लिए? Let's see.
pile 2 additional messages. What is happening for them in the next 3 months and what they should do in the next 3 months. Advice, guidance, anything. Okay, so we'll take this one. Yeah, and also this one. Yeah. Yes. Okay. That is all. Go deeper. Okay. Oh yeah, मुझे कार्ड लग रहा था ना ये आएगा. ठीक है. So I'll show you your cards now. We have step into. Shit, थोड़ा सा गीला हो गया. Step into your power. Then we have reveal what needs to be seen. Lighten up. Yeah. Take a reality check. Okay. And the last from the deck, like from the bottom of the deck, is go deeper. Yes. So step into your power wala card तो I think is self-explanatory and I feel step into your power वो creativity वाले messages वो creative वाले message से मैं इसे जोड़ूंगी जो मैंने पहले बोला. उसके अलावा हमारे पास लाइटन अप वाला कार्ड है एंड या आई थिंक लाइटन अप वाला कार्ड ये कहीं ना कहीं कंफर्म करता है आपके लिए कि आई थिंक लाइफ इज गोइंग टू बी अ लिटिल इजी फॉर यू इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स. थोड़ी सी आई थिंक आपको स्मूथ लगेगी चाहे और किसी को लगे ना लगे बिकॉज आई फील जितने आपने आई वुड से रोड ब्लॉक्स या एक ऑब्स्टिकल्स या मैं कहूँगी यू नो लाइक वो जो एक आपने एक बम्पी रोड देखी है अपनी लाइफ में आई फील वो उसके कंपैरिजन में आपको यू नो दिस हार्ड वर्क दैट यू वुड बी डूइंग आई थिंक दिस वुड एक्चुअली फील अ लॉट एफर्टलेस फॉर यू इवन इफ योर लोगों को यू नो ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करें बट आपके लिए वो हार्ड वर्क भी थोड़ा सा केक वॉक टाइप लग रहा है मुझे क्योंकि या क्रिएटिवली आप या लाइक बिकॉज आपका नेचर ही एक क्रिएटिविटी से कहीं ना कहीं स्टेम करता है तो दिस इज़ रियली ईजी फॉर यू. या देन टेक अ रियलिटी चेक. नाउ टेक अ रियलिटी चेक से मेरा मतलब है कि आई थिंक यहाँ पे अवेयर रहने वाली बात आ रही है मुझे कि आपको अवेयर तो रहना ही है कि आपके आसपास क्या हो रहा है. यू कैन नॉट रियली जस्ट यू नो just close yourself or you know yeah I was about to say that close the doors of your life but yeah I said close yourself so yeah I think so you just cannot close yourself like that कि मतलब मैं अपना काम कर रहा हूँ तो सारी दुनिया भाड़ में जाए ऐसा तो नहीं करना है आपको. एकदम बंद नहीं हो जाना है. लोगों से बातचीत करती रहनी है पर बैलेंस बना के रखना है और ऐसा भी नहीं कि इतना बैलेंस बनाने के चक्कर में जो आपकी डेप्थ वाली जो एनर्जी है मतलब ऐसा भी नहीं करना कि आप यू नो जो भी आप कर रहे उसकी डेप्थ तक ना जाएं. ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर उसकी जड़ तक आपको जाना है. गो डीपर. या लाइक सरफेस लेवल काम नहीं कर रहे हो अभी आप डेप्थ वाली काम कर रहे हो. यस एंड रिवील व्हाट नीड्स टू बी सीन एंड जो भी आपकी कुछ गलती होगी या गलती से कहीं ज़्यादा अगर कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आप नहीं देखोगे जो आप शायद नहीं देख पाए फॉर सम टाइम या ऐसा कुछ वो भी अब तक रिवील हो ही जाएगा. वो आपको रिवील करवा दिया जाएगा. वो आपको स्पिरिट बता देंगे या वो किसी के थ्रू आपको यू नो एग्जैक्टली वो चीज़ समझा देंगे तो वो चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए. ये यहाँ पर कॉन्फर्मेशन है. या देर इज़ अ लॉट ऑफ गाइडेंस फॉर यू. देर इज़ अ लॉट ऑफ आई वुड से मतलब आपको ये भी बोला जा रहा है कि कभी अगर आप भटक जाते हो तो भी आपको स्पिरिट डायरेक्शन दिखाएगी. इसका मतलब ये नहीं कि आपको फोकस नहीं रहना है या ऐसे यू नो लाइक ऐसे
आई डोंट केयर एटीट्यूड में रहना है, ऐसा नहीं करना। बट यहाँ पर स्पिरिट ये कह रही है कि आप कभी भटक भी जाते तो भी हम हैं आपको रास्ता दिखाने के लिए। या आई थिंक दैट इज़ ऑल। एनी अदर मैसेजेस? यस, आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर यू ग्रुप नंबर 2। अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। एंड इफ़ you like how I read cards, please like, share and subscribe to this YouTube channel. It would mean a lot to me. It would, yeah, I would really appreciate that if you could do that for me. And yeah, thank you everyone for watching this video, and I shall see you in my next reading. Until then, take care, lots of love, bye.